Please rise for national anthem. Very good morning, everyone. Friends, I am very sorry to share with you the mother of one of our beloved member, Rotarian Vinay's mother, passed away yesterday. So I will request you to please rise for 1 minute silence, and we should pray for her soul be in peace. For 1 minute, please. Thank you very much. I am extremely happy to welcome General Sori, who is among us today. Incidentally, he is a batchmate and he is one of best friends of mine. So, General Sori, you are most welcome. I would also like to welcome others. Vivek has joined and some more. Let me see it. Prakash is there, General Sori is there, Vivek is there. So you are all welcome. Hearty welcome to you. May I start? No minute, 1 minute. Just give me. I will. Okay. I am very glad to share with you all that Rotarian past President Rohit Jirazani has arranged a wonderful global grant project worth total value 30,400 USD to bring out the Hope and Healing Center, a residential treatment facility, and intensive outpatient program center in Sanford, Florida. In this global grant project, our club's contribution is just $100. The Hope and Healing Center is scheduled to open in December 2020. The amount of global grant will be used to purchase equipment for the center. May I request you all to please put your hands together and give a very big hand to Rotarian Rohit Jirajani. Thank you very much. Friends, second board of directors meeting is scheduled on coming Wednesday, 21st October 2020. Rotarian Prerna Gaikwad Club Secretary will share poster and Zoom meeting invite link shortly. I would like to request all esteemed members, advisory board and BOD members to block day, date and time in your calendar and make it convenient to join. It will be at normal time 8:30 a.m. Dear Riversiders, our next online fellowship is scheduled on Friday evening, 30th October 2020 from 6:30 p.m. to 8 p.m. The host of this fellowship is Rotarian Jailam Chaubal, who is proactively being supported by Rotarian Prerna Gaikwad, Deepak Gupta, Director Fellowship, and Rotarian Prerna Gaikwad, Club Secretary. Please block day, date, and time in your calendar and participate with your wonderful aunts. This time it is going to be another high level of online fellowship. Rotarian Prerna Gaikwad has requested all members to share with her their home address, cell phone number,
and name in capital letters. In fact, this has twin objective. One, of course, to update and our database, and second, to enable us to give you a pleasant surprise. I am repeating, a pleasant surprise, for which required details are mandatory conditions. In view of this, I would appreciate if you could please share details requested by Prerna at earliest, maybe in couple of days. Now it's time for secretarial announcement by Prerna Gaikwad, Club Secretary. Over to Prerna. Hi, very good morning to everyone once again. We have a lot of birthdays and anniversaries this week again. We have Rashmi Bhai Motiwale on the 17th. We have the anniversary of Rotarian Anuradha and Anil Mungi on the 18th. And 19th is First Lady Krishna Mishra's birthday. So here's wishing them all a very happy birthday and very happy anniversary in advance from all of us at the Rotary Club of Pune Riverside. Colonel, back to you. Thank you. Thank you, Prerna. Thank you very much. Now it's time for formal introduction and welcome our today's keynote speaker, General Amir Kumar Sori. I would like to invite Rotarian Janvi Hardas, youngest member of Rotary Club of Pune Riverside, to do this honor. Over to Janvi Hardas. Thank you, Colonel. Good morning to everybody present here today. It gives me immense pleasure to be introducing today's speaker, Major General Amil Kumar Shori. General Shori is from the 1982 Civil Service Officers batch and he served the Army for 21 years. He's also served as the former Additional Director General of the Army Postal Service Corps. He's headed the Corps between 2011 and 2015 before retiring as a member of the Postal Services Board in 2016. General Shori has attended various training courses in India and abroad, one of which has been the Advanced Management Program in Switzerland. Apart from all of this, General Shori is a ferocious reader. He is an enthusiastic listener. He's a social thinker and has also already authored 4 books. So he's a reputed author as well. Apart from the books, his articles on social issues and international relations are published periodically in newspapers and magazines. General Shori delivers motivational talks to students, to government officials, and to senior or middle level executives. And he says that his prime focus is to explore rich ancient wisdom and philosophy and to present it before the audience today, making it available before the modern times. He has an extensive research on behavioral sciences and has developed management skills based on the Panchatantra stories from the Ramayana and Mahabharata. Presently, General Shori is the chairman of the governing body for the GGDSD College in Banur and is also the director of the Human Development Policy Research and Training Center. We welcome you today and we thank you for taking the time out to speak with us this morning. Thank you. Back to you, Colonel. Colonel, you're on mute, sorry. This is the time, thank you Janvi for beautiful introduction. This is the time to hand over the floor to General Shori. So over to General Shori. Thank you very much. Hopefully my audio is clear. Yes. Audio, video, before both I start my before I start my presentation, I'm extremely thankful to all the Rotarians, but my special thanks to Colonel K.C. Mishra, our batchmate, our friend, and I will call him my friend, philosopher, and guide. Friends, I just want to share one thing before I make my presentation. He's my batchmate, he's Colonel, I am General, but I am General because of Colonel. Let me make it clear that bit of secret that when my promotion from brigadier to general was pending in the army headquarters, there was a lot of issues or the politics was going on, and I was feeling very, very much frustrated. And I thought that let the fate take its own course. I want to express my thanks in front of you. That it's only because of K.C. Mishra that I got the guts and the courage to take up the case. And he motivated me. I still remember when I landed at Calcutta airport, I talked to him. I was very much frustrated. I talked to him. He motivated me, encouraged me, said, no, you have to put forth your case before Army Chief.
It's only because Colonel Mishra's friendly advice, his sincerity, his best wishes that I took up the case and ultimately I became general. So I just want to acknowledge in front of all of the Rotarians that if today I'm general, it is because of Colonel. Grand salute to you, General. Thank you very much. So nice of you. In fact, thank you. I was just thank you. I'll just share my presentation and Sure. start. Sure. Is the slide is absolutely clear, please? Yes. Okay. So next 45 minutes or so, I'll be making the brief presentation about the conflict management lessons from Panchtantra. But before I make the presentation, I just want to request that sometimes there are some connectivity problems. If there is any disruption in the audio or the video, somebody can just prompt me. Otherwise, then you simply forget that what has happened in the backside. I will let you know, General. Go ahead. As far as the Panchtantra is concerned, everybody is well aware about, most probably about the Panchtantra, the stories of Panchtantra. इससे पहले के जो है मैं conflict management पर आऊं from the Panchtantra, I just want to share that Panchtantra की background क्या है. उस जमाने में about 3000 years back, उस जमाने में एक किसी प्रदेश में एक राजा थे. I'll be mixing the Hindi and the English क्योंकि कहानी सुनाने का मजा थोड़ा हिंदी में भी आता है. एक राजा थे जिनके लड़के थे और उसको 4 लड़के थे और उसको लगता था कि ये चारों लड़के सारा दिन जो है खेलते रहते हैं, शिकार करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है. एंड वन डे ही became worried that after his death what will happen to his kingdom. Now he consulted his ministers and minister says कि सर ऐसा है कि now they have reached such age and stage it's very difficult to make them capable and they are just killing their time, passing their time. But however, we know that there is a person called Mr. Vishnu Sharma. If you take these boys to Mr. Vishnu Sharma, definitely he will do something. राजा को बात जची, उसने कहा चलिए मैं ट्राई करता हूं. और पंडित विष्णु शर्मा थे, उनके पास वो लेकर गया और सारी कहानी बताई कि मैं तो बहुत परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सारा दिन खेलते रहते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनके नॉलेज लेवल बहुत पुअर है. विष्णु शर्मा टोल्ड द किंग, भाई अभी ये 20-20 साल के हो गए हैं, अगर तुम कहो कि मैं इनको जो है मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह ये पढ़ाऊं, वो नहीं पॉसिबल हो सकता. हाँ, इफ यू लीव दिस बॉयज विद मी फॉर नेक्स्ट 6 months, मैं इनको जिंदगी जीने का तरीका सिखा दूंगा. जिंदगी जीने का तरीका. किंग वॉज वेरी मच इंप्रेस्ड. उसने डिसीजन लिया, लड़कों को विष्णु शर्मा के पास छोड़ा और 6 महीने के बाद जब वो लड़के आए तो राजा ने देखा कि देयर इज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर आउटलुक, इन देयर अप्रोच, इन देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा. उसने पूछा क्या हुआ क्या. उन्होंने कहा कि हमें जो विष्णु शर्मा ने आपको कहा था वो करके दिखा दिया, हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया. आज मैं आपको जो एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वो एक जिंदगी जीने का तरीका है. अब आपके सामने एक स्लाइड है जो कहती है एज स्वैंस एक्सट्रैक्ट द मिल्क विद वाटर मिक्स्ड. पहली जो ऊपर एक पैराग्राफ है उसकी 4th लाइन. एक राजहंस नाम का पक्षी होता था किसी जमाने में, जिसमें क्वालिटी थी कि अगर उसके सामने दूध में पानी मिक्स करके रख दिया जाए तो उसमें से वो पानी छोड़ देगा और दूध पी लेगा. तो पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र यही है कि हम आलतू फालतू की चीजों को, बेकार की चीजों को, जो आपका टाइम एनर्जी वेस्ट कर रही हैं, उसमें हमारे में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट वी को आइडेंटिफाई दोस थिंग्स, जस्ट लीव देम, और जो अकल की बात है उसको पकड़े और जिंदगी के रास्ते पर आगे चले. इन अदर वर्ड्स, पंचतंत्र लीड्स अस टू हैव एन इंटेलिजेंट लिविंग. दिस इज दैट द my thinking about the Panchtantra, and it's a complete book on management skills. I have developed a couple of skills. One is about the ethical economics, जो हम एक webinar करने जा रहे हैं around Diwali, and second is this, the how to manage conflict. अब मैं आपको एक कहानी ही सुनाने जा रहा हूं क्योंकि पंचतंत्र क्या है, वो कहानियां ही हैं. उन कहानियों से मैंने जो स्किल डेवलप किया है
वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। बिफोर आई स्टार्ट द स्टोरी, ऐसा नहीं है कि इसमें जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को मालूम नहीं है। Everybody has reached at this age and stage of your life. You all are working professionals. You are retired people also. You have seen the whole life. लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता होती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गायब हो चुकी होती हैं। और ये कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्यों? भाई कन्फ्लिक्ट तो हर जगह है। जैसे हमारे बैचमेट ने कहा कि हमारे बैच में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, बट टुडे वी आर लर्निंग अबाउट हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी है, हमारे घर में भी है, बच्चों के साथ भी है, वाइफ के साथ भी है, पीयर्स के साथ, रिलेशंस, प्रोफेशंस, वेयरएवर यू नेम इट, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट एवरीवेयर। एंड पांचों उंगलियां बराबर होती नहीं है, लोगों के सोच के तरीके अलग हैं, थॉट प्रोसेस अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है। सो टू have conflict in our life is natural thing. You cannot avoid it, you have to only manage it. Now how to manage the conflict through पंचतंत्र, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बस एक ही है कि आपने जो है कहानी सुनने का समय सुबह का रखा। अगर आपने रात का रखा होता, सर्दियों का मौसम होता, तो रजाई में बैठकर आप कहानी सुनते और सुनते सुनते सो जाते। लेकिन अच्छी बात है कि कर्नल मिश्रा जी ने सुबह का टाइम रखा है। तो क्या हुआ, एक बार उल्लुओं और कौओं में लड़ाई हो गई। उल्लू और कौओं में लड़ाई भी इतनी ज्यादा, इतनी जबरदस्त कि दोनों का बहुत बुरी तरह से जान माल का नुकसान होना शुरू हो गया। और स्पेशली जो कौए थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि भाई ये तो ऐसे हैं, इनको रात को भी दिखाई देता है और हम सो रहे होते हैं तब आकर अटैक करते हैं। और उस लड़ाई में जब बहुत नुकसान शुरू हो गया कौओं का, तो उनके राजा ने अपने मिनिस्टर्स, जो उसके सिलेक्टेड फ्यू मिनिस्टर्स थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई। Now when you listen the story and see the slides, keep into mind take the image of a corporate house. ये सारी चीजों को अपने मन में रखिएगा कि इस कहानी से हम उन सारी चीजों को where we can fit। तो मीटिंग बुलाई और उसने कहा भाई ये बहुत प्रॉब्लम है, बड़ा जबरदस्त कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको हमें रिजॉल्व करना है। वी कैन नॉट अफोर्ड। यू कीप इनटू माइंड द इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट एज ऑन डेट, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट आल्सो इन योर माइंड। अब उसमें जो है, जब उसने अपने मिनिस्टर्स की ओपिनियन मांगी, तो एक मिनिस्टर जो उसका काफी इंपॉर्टेंट कह लीजिए या समझदार कह लीजिए, उसने कहा कि ऐसा है महाराज, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो है अपने दुश्मन के साथ संधि कर लेनी चाहिए। So first strategy to manage the conflict was put forth by one minister, that have treaty with the enemy. Now the king asked, why I should have treaty with the enemy? Can you explain it? He says, yes, I have some reasons to explain that why we should have a treaty. He said, why? Then the minister said, king, always keep into mind that one should not make war with a powerful enemy, and one should bow one's head before a person who is much stronger than oneself, and one should gather the strength with the passage of time to take the enemy on. He said, वो बहुत पावरफुल है, उसके साथ अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, इसलिए हमें उसके साथ युद्ध को बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। He is very strong. Now keep into mind that Tibet and Bhutan versus China, they cannot afford to have a war against China because China is very, very powerful vis-a-vis these small countries. But king was not satisfied. बोला ठीक है, आपने ये बात कही है, आपके पास कोई आर्गुमेंट है? उसने कहा कि अगर हम संधि करेंगे, शांति होगी, तो प्रॉस्पेरिटी होगी like a river water flow. And he said, king, one should foster peace with the powerful enemy, an enemy who is rich, wise and good one. अब आप देखिए क्या बोल रहा वो, ऐसा दुश्मन जो रिच भी है, which means he can afford to drag on the war, वो वाइज भी है, इसका मतलब कि he is a very good strategist, he knows how to handle the war, और ओवरऑल वो ठीक है, लेकिन उसकी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, that's a totally different thing.
So with such type of enemy who is rich, wise and good one, if we have an agreement or the treaty, it will be ultimately beneficial to us. But if we continue to fight with him, he can afford to drag it. He is rich also. He is more tactful. Loss will be ours. And he said, he is a seasoned conqueror. And king, just remember that in whose house there is no discord, जिसके घर में कोई आपस में डिस्कॉर्ड नहीं है, यूनैनिमिटी है, ऐसे एनिमी के साथ अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, सीजन कंकरर है, वाइज है, रिच है, गुड है, पावरफुल है, it is our loss, hence we should have treaty with him. But king was not satisfied. Then the minister said, king, keep into mind that it is also advisable to have peace with the wicked person. I belong to rural area. Everybody belongs to rural area. खासकर गांव में ये ऐसी बात होती है, यार ये गांव में बदमाश है, ये गुंडे हैं, इनको दूर से दुआ सलाम करो, इनको आते जाते नमस्कार करो, इनके साथ बना कर रखो, बदमाशों के साथ हमने लड़ाई करके क्या करना है, ये they can afford to have it, लॉस हमारा ही होगा. ये होता है, हमारे साथ होता है, अभी भी हम देखते हैं, चारों तरफ रहने वाले लोग जो है क्रुप्ट होते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं, उनसे बचते हैं. So minister says he is wise, he is rich, he is wicked also. With such people we should not have any fight, because the first priority should be to make one's life safe and secure. अगर हम ही ना बचे तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए हमें इसके साथ संधि कर लेनी चाहिए. And again he says one should make peace even with the equals. अब देखिए, वाइज है, रिच है, पावरफुल है, विकेड है, बराबरी का है, बराबरी के वाले के साथ भी हमें संधि करनी चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट श्योर वेदर वी विल विन और नॉट. नाउ हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? This is the first strategy is being given by first minister to have peace. And he gives another argument that there may be a doubt while fighting with the equals, and it's better that the other methods are tried first, and fight should be only under extraordinary circumstances. इसलिए हे राजा, अब आप चुपचाप उसके साथ संधि कर लीजिए. And finally he says कि ख्याल रखना, land, friends and gold have been won only when there is no battle. भाई अगर आप लड़ाई लड़ते रहोगे तो आप प्रोस्पेरिटी कैसे होगी, आपका तो नुकसान ही होता रहेगा. अब पिछले 20 साल में प्रॉक्सी वॉर जो है हो रही है पाकिस्तान के साथ इंडिया की, उससे हम उस सारी बेल्ट में हो क्या रहा है, जान का नुकसान, माल का नुकसान, पैसे का नुकसान, ये ऐसा ही हो रहा है. और परहैप्स मुझे लगता है शायद ये बात यूएसए को भी पता था और तालिबान को भी पता था पंचतंत्र की इस कहानी को. सो आफ्टर 25 years they have agreed that there should not, the conflict should be resolved by having an agreement. I'm not suggesting anything, I'm just explaining the facts before you people. The minister देखे, अब पंचतंत्र इतना पुराना 3000 पुराना ग्रंथ, उसमें क्या बात लिखी हुई है. It's better to shrink like a turtle in the shell, take the blows, raise the head from time to time like the black snake. समय आएगा तो काले सांप की तरह, अजगर की तरह फन उठाकर हम उसको डसेंगे. इस वक्त जो है आप कछुए की तरह अपने होल के अंदर आप घुस जाइए. इस पहली जो स्ट्रेटजी है एग्रीमेंट या संधि की जो बात हो रही है, उसकी मैंने छोटी सी एक समरी बनाई है. क्या है? दिस स्ट्रेटजी इज टू बी व्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ ए कंट्री, बिग कंपनी और ए कॉर्पोरेट हाउस इन कंपटीशन. अब मैं एक वही बात कह रहा हूं कि यूएस और तालिबान की एग्जांपल दी है, वियतनाम की एग्जांपल दी है, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो. 25 साल से जो है इंडिया पाकिस्तान चला आ रहा. भाई ना तो हम न्यूक्लियर बम मार रहे हैं, ना हमको जो है फुल फ्लैश वॉर हो रही, प्रॉक्सी वॉर से जो है उसका भी नुकसान हो रहा, मेरा भी नुकसान हो रहा. तो ये कब तक चलेगा? 50 साल, 100 साल, 200 साल? अल्टीमेटली एक दिन आएगा जब टेबल पर बैठकर जो है आपको अक्रॉस द टेबल यू हैव टू नेगोशिएट एंड सेटल इट, और यू हैव टू वाइप आउट योर एनिमी. सो फ्रॉम द एंगल ऑफ ए बिग कंपनी और ए कॉर्पोरेट हाउस, इसी तरह से एक कॉर्पोरेट हाउस दूसरे कॉर्पोरेट हाउस के कंपटीशन में देखे तो उसको भी कभी कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है. ही कैन नॉट हैव एन प्रोलॉन्ग्ड कंपटीशन विद द अनदर कंपनी और द कॉर्पोरेट हाउस. इट आल्सो मीन्स दैट lying low for the time being and mobilize your resources. जैसा कि
कछुए की और सांप की उसने एग्जांपल दी है. Lying low for the time being, mobilize your resources, and appropriate time you take that opponent, because he being rich and resourceful can afford to drag. उससे collateral damage आपका ही हो रहा है. अब ये पहली स्ट्रेटजी जो है, टू हैव एग्रीमेंट, टू हैव ट्रीटी की जब मिनिस्टर ने बताई, राजा ने सोचा भी मैं दूसरे मिनिस्टर से भी पूछ लेता हूं. उसने दूसरे मिनिस्टर से ही पूछा. अब दूसरा मिनिस्टर बोला कि मैं तो इस पागल की बात सुनकर हैरान हो गया हूं. ये तो आपको बिल्कुल गलत सलाह दे रहा है. ये इसको आपने अपना सलाहकार मान रखा है. मैं नहीं इस चीज को सपोर्ट करता. द किंग आस्क्ड, भाई आप क्या कहते हो? He said, my strategy is that we should be immediately on war. कोई संधि नहीं करनी, वॉर करनी है. राजा परेशान हो गया. भाई ये संधि की बात कर रहा है, ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है. He says, क्यों? वॉर क्यों करनी है? Minister says, one should never compromise with a foe that is unprincipled and false. वो बोला वो तो झूठा है, वो तो मकार है. आप कैसे गारंटी कर सकते हो कि ट्रीटी की कंडीशंस भी वो कल को फॉलो करेगा? जो झूठा है, मकार है, क्रुक है, दुष्ट है, उसके साथ संधि हो ही नहीं सकती. वो कल को आपका वेलफेयर देख ही नहीं सकता. अपार्ट फ्रॉम दैट, ही सेज, इट इज futile to seek any accommodation from such a person. कोई फायदा नहीं है संधि करने का. No agreement binds him and quickly he shows his wickedness. आज आप उसके पास संधि के लिए जाओगे, कुछ दिनों के बाद वो बोलेगा कौन सी संधि, ये क्या संधि, मेरे को ये क्या करना, मेरे को वो करना, बिकॉज ही इज ए क्रुक्ड पर्सन. तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे? फिर आपका झगड़ा हो जाएगा, फिर आप लड़ाई करोगे. इसलिए ये संधि वंधि की बात छोड़िए, इसको भूल जाइए. ये मंत्री जी आपको जो संधि की बात कर रहे हैं, ये आपको जो है गलत सलाह दे रहे हैं. यू शुड हैव कंटिन्यू टू हैव वॉर विद हिम. क्या बोल रहा है कि उससे अगर आप संधि की बात करेंगे, उससे तो वो और गुस्सा हो जाएगा, वो सिर पर चढ़ जाएगा. तो ऐसे से हम क्या करें? उससे बात करें क्यों? क्या बात की. मैं कभी कभी सोचता हूं, ये पंचतंत्रा वाले भी जो है, विष्णु शर्मा जी ने जब लिखा, उन्होंने देखिए क्या एग्जाम्पल ली. अब इसको आप देखेंगे, द फोर्स इंडेस्ट्रक्टिबल बाय माइट, वो बहुत पावरफुल है, आर स्लेन थ्रू डिसेप्टिव जेस्चर, as Bhima killed Kichaka by approaching him in women's vesture. क्या प्रोज बनाई है जेस्चर और वेस्चर की. महाभारत में जो प्रसंग आता है कि द्रौपदी को तंग करने के लिए कीचक उसको जब रात को अपने रूम में बुलाते हैं, तो भीम जो है द्रौपदी की बजाय उसके कपड़े पहनकर खुद जाते हैं और वो समझता कि द्रौपदी और कीचक को मार देते हैं. विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र में महाभारत की एग्जाम्पल देकर उसको बता रहा है वो मंत्री कि इस तरह से हमें उसको डिसीव करके डिसेप्टिव जेस्चर के थ्रू मारना चाहिए, जिस तरह से भीम ने कीचक को मारा था. अब इसके साथ फिर वो और आर्गुमेंट दे रहा कि राजा आप ये मत सोचो कि हम जो है छोटे हैं, हल्के हैं, ये है वो है. आप इस चीज को ख्याल रखिएगा कि जो छोटे होते हैं वो क्या है, lion kills the elephant and rules with unrestricted vigor. Smaller often slays the great by showing energy and vigor. कि छोटा है शेर, हाथी कितना बड़ा है, लेकिन शेर हाथी को मार देता है. तो आप क्यों डर रहे हो? संधि की बात कर रहे हो. लड़ना है, उसको तबाह करना है. इसकी मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है. A strong opponent being in an advantageous position will continue to dominate and dictate the terms and conditions. अब उसके साथ अगर आप संधि करेंगे तो संधि की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो अपने हिसाब से आपके सामने रखेगा. तो क्या होगा कि आपको डिसएडवांटेज ही रहेगा. इसके अलावा उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट होगा, बिकॉज ही इज नॉट कंसर्न्ड विद यू, उसका अपना इंटरेस्ट है, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट विल प्रिडोमिनेटली फोर्स द स्ट्रॉन्गर वन. आपके इंटरेस्ट को वो इग्नोर करेगा. And terms and conditions of peace will be as per his advantage. इससे मैंने एक समरी बनाई है कि जब भी हमें किसी के साथ कंपटीशन हो, हम एग्रीमेंट की बात करें, वी हैव टू बी वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड केयरफुल कि ये इसका एडवांटेजेस अगर है तो इसका फायदा उठा सकते हैं.
दो स्ट्रेटजी आई, संधि की और लड़ाई की। राजा तो परेशान हो गया, क्या करे अब वो, क्या करे। वो तीसरे मिनिस्टर की तरफ देखना शुरू कर देता है कि जनाब आप हो मेरे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो भी हो, आप मेरे को बताओ मैं क्या करूं। एंड व्हाट द थर्ड मिनिस्टर सेज, he says ये दोनों सठिया गए हैं, इन दोनों का दिमाग चल गया है, ये आपको गलत सलाह दे रहे हैं, आप मेरी बात मानो। अब राजा परेशान हो गया, हाथ जोड़कर बोलता है कि जनाब आप बता दीजिए कि मैं क्या करूं। he says move away, he says move away। क्यों, क्यों move away? When vicious foemen proud of power from hindering scrupulous free adopt a change of base, not peace, not war for victory। अब मैं यहां पर एक हिस्टोरिकल बात आपको बताता हूं। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु आनंदपुर साहब का किला, उस किले को चारों तरफ से मुगल्स ने घेर लिया बुरी तरह से। उनकी काफी लड़ाई में जो है उनके साथी मारे भी गए, बहुत थोड़े से लोग रह गए, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। और वहां पर उन्हीं उनके साथियों ने उनको कहा, गुरु महाराज हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वक्त जो है आप किला छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे तो सिख धर्म रहेगा, अगर यहां पर कहीं आपकी जान को कुछ हो गया तो सिख धर्म ही खत्म हो जाएगा, आप इस वक्त टेम्परेरली अपना बेस चेंज कर लीजिए। शायद गुरु गोविंद सिंह जी को पंचतंत्रा के बारे में पता था, या उनमें इतना लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ नॉलेज था कि उनको इस टैक्टिक्स के बारे में भी उतनी ही नॉलेज थी, और वो अनंतपुर साहब का किला छोड़कर अपने साथियों के साथ चमकौर की तरफ को चल पड़े, और अपनी जान तो बचाई, सिख धर्म को भी जो है उन्होंने बाद में एस्टेब्लिश कर किया और अपने आप को दुनिया में एस्टेब्लिश किया। अब देखिए, वापस लेकर आता हूं कहानी की तरफ। ही सेज वी शुड मूव अवे, and he gives the argument also. Change of base is having twin objectives. One is to retreat so as to save the imperial life, अपनी जिंदगी बचाना है, और दूसरा after some time with the proper planning to invade and win। इस वक्त जो है हम नहीं लड़ पाएंगे उसके साथ, हमें अपने आप को दूर ले जाना है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, फिर स्ट्रांग बनना है, प्लान प्रॉपर करनी है, और उसके बाद आकर इनके साथ लड़ाई करनी है और इनके ऊपर विजय हासिल करनी है। And he gives another argument. A king should put his realm in charge of heroes who are strong and fit। भाई अगर तुम्हारे ये सिपाही, तुम्हारे सिपासालारी लड़ाई में रोज जख्मी हुए जा रहे हैं, मरे पड़े हैं, खाने पीने की कमी हो रही है, तो कैसे लड़ाई होगी? वो स्ट्रांग और फिट होने चाहिए। अगर वो स्ट्रांग एंड फिट होंगे, then they should pounce upon the hostile land when its spies have peopled it। मतलब अपने जासूसों की मदद से दुश्मन के किले के बारे में, एरिया के बारे में, उसकी वीकनेसेस के बारे में इनपुट्स लेना, स्ट्रांग बनना, फिट बनना, और प्लानिंग करके फिर उसके ऊपर हमला करना। सो थर्ड मिनिस्टर इज सजेस्टिंग द थर्ड स्ट्रेटजी, ना संधि ना लड़ाई, बल्कि मूव अवे। और वो क्या बोलता है कि कोई भी किसी चीज का कॉज और इफेक्ट हमें देखना चाहिए, ये इसका कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा। और रिसेसिव मूवमेंट जो है, साइंस ऑफ एथिक्स कहती है कि कॉज और इफेक्ट को देखकर किया जाता है। हेंस एट दिस स्टेज वी शुड मूव अवे। एंड फाइनली ही सेज द केस इन हैंड रिक्वायर्स, ओ किंग, द बेस चेंज कॉल्ड रिट्रीट, नॉट पीस नॉट वॉर। The foe is wild and very hard to beat। 3 स्ट्रेटजी आ गई, जैसे वो 2 स्ट्रेटजी थी, इसमें तीसरे की भी मैंने छोटी सी समरी बनाई। क्या? टू बी अवे फ्रॉम द टाइमिंग मीन्स डाइवर्टिंग द अटेंशन। इसका मतलब ये भी है कि हम उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं और अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हैं, विच मीन्स दैट वी आर बाइंग द टाइम। टू मूव अवे इज नॉट टू लीव द बैटलफील्ड परमानेंटली, रादर इट मीन्स अपने एनर्जी, अपने रिसोर्सेस, उनको बचाकर रखो, और उसके बाद समय आने पर उसके साथ लड़ो, क्योंकि डायरेक्ट फाइट में आप उसके साथ नहीं लड़ सकते। 3 स्ट्रेटजी आपने देखी अभी, संधि, लड़ाई, मूव अवे। क्या करे राजा?
किसकी बात माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, महा कंफ्यूज हो गया वो। अब क्या करे वो चौथे की तरफ को पूछता है, भाई मैं तो पागल ही हो गया हूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अब मैं करूं तो क्या करूं। ये तीनों जो है अलग अलग की बात कर रहे हैं। जो है उसका जो मिनिस्टर वो क्या बोल रहा है उसे, he says strengthen yourself, कहीं छोड़कर नहीं जाना, कोई लड़ाई नहीं लड़नी, अभी अपने आप को यहीं पर रहते हुए अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। क्यों स्ट्रेंथन करना, देखिए ये आपके सामने क्या बात आ रही है, ए क्रोकोडाइल एट होम कैन बीट एन एलिफेंट, पानी में अगर हाथी भी आ जाएगा तो क्रोकोडाइल उसको भी नहीं छोड़ेगा, बट इफ ही गोज अब्रॉड ए डॉग कैन मेक हिम पेंट। एलिफेंट और पेंट प्रोज क्या बढ़िया बनी है, अगर उसने पानी छोड़कर बाहर आ गया तो एक कुत्ता भी जो है उसको मार सकता है। इसलिए हमें अपना बेस नहीं छोड़ना है, अगर हमने बेस ही छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। यू जस्ट थिंक अबाउट दैट, द ज्यूज जो है इजराइल को अपना बेस क्यों बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर उनका ये इजराइल बेस ही छूट गया तो ज्यूज कम्युनिटी ही खत्म हो जाएगी, जैसे किसी जमाने में हिटलर ने उनके साथ किया था। तो इसलिए ज्यूज चाहते हैं इजराइल कंट्री रहेगा तो ज्यूज रहेंगे। While groves of trees where each receives and gives defense unitedly, तो पेड़ों के छोटे छोटे झुंड होते हैं, वो जब तेज आंधी चलती है उखड़ते नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के साथ उनकी पत्तियां उनकी टहनियां वो झुक जाती हैं और वो स्ट्रांग बन जाते हैं फायरी वायलेंस में। इसी तरह से one man alone, however brave he may be, is scorned by foes who soon proceed to injury. अगर आप अकेले रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी, अपने आप को आपने स्ट्रेंथन करना है। आसपास देखो कौन है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको स्ट्रेंथन कर सकता है। इफ पैनिक स्ट्रक यू फ्ली व्हेन फोर्स आर एट द डोर, अब वो जब हमारे सिर पर आकर खड़े हो गए, अगर इस वक्त आप छोड़कर चले गए, लीव द लैंड टू देम, आप कभी अपनी इस लैंड को वापस नहीं ले पाओगे। आज आपको उनके साथ लड़ना मुश्किल हो रहा है, अगर आपने बेस ही छोड़ दिया तो आप अपना किला, अपनी लैंड, अपना ये जिसके साथ आपकी रिकॉग्निशन है वो आपका सारा खत्म हो जाएगा। हेंस यू हैव टू बी हियर ओनली, स्ट्रेंथन योरसेल्फ। वो एग्जांपल क्या दे रहा देखो, देखिए यूनियन ऑफ द स्मॉलर वंस बिकम्स वेरी स्ट्रांग, लाइक स्ट्रांग ब्लेजर्ड कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ द श्रब्स। छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है ना, जब तेज हवा चलती तो वो जमीन के ऊपर बिछ जाती है, वो इस तरह से बिछ जाती है, क्लम्स की तरह जो ग्रो करती हैं कि वो बिछ कर जो है वो जमीन की जड़ों के साथ मिल जाती हैं और ब्लिजर्ड उसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो सिंगल ट्री होता है, कितना भी बड़ा हो, जब वॉल्केनो आता है सिंगल ट्री की हो वो जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। इसलिए हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर एज ऑर डे। इसकी भी मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है। टू स्ट्रेंथन मीन्स base is solid, it means your base is solid, but preparations are to be made to make sure that the enemy is defeated. आपकी preparations जो हैं आपको स्ट्रेंथ देने के हिसाब से इस तरह से होनी चाहिए कि आपका मकसद पूरा हो सके। अब यहां पर पांचवा मिनिस्टर आ गया, पांचवा मिनिस्टर ने इंटरप्ट कर दिया, बोले रुको 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 रुको, ये जो स्ट्रेंथन वाली बात कह रहा है ना, मैं बताता हूं इसको। हमें स्ट्रेंथन कैसे करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ अलायंस करना चाहिए, दूसरों के साथ अलायंस करना चाहिए। संधि से बात शुरू हुई, लड़ाई से हुई, बेस छोड़ दे, स्ट्रेंथन करें। और स्ट्रेंथन कैसे करें, दूसरों के साथ अलायंस करें। कभी आप लोगों को मौका मिले तो मेरा एक सेमिनार आ रहा है, चाइनीज चेकर एंड इंडियन क्रैकर, इन विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट द how quad, that is that the India, Australia, Japan and China, India, Australia, Japan and USA, वो कैसे साउथ चाइना में अपना एक अलायंस बनाकर चाइना को समुद्र के रास्ते घेरने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिफ्थ स्ट्रेटजी उसने कहा, वी शुड हैव अलायंस विद अदर्स। व्हाई वी शुड हैव अलायंस विद अदर्स? राजा पूछता है, क्यों भाई, किस लिए मैं दूसरों के साथ अलायंस करूं? He says,
whoever may be how much deft and brilliant, no good can be attained without a friend. मैंने तो सेमिनार शुरू होने से पहले ही बात बता दी थी अपने दोस्त केसी मिश्रा की। मैं चाहे डेफ्ट होता, चाहे ब्रिलियंट होता, नो गुड कैन बी अटेन्ड विदाउट ए फ्रेंड। बिना दोस्त के आप जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। बेटर स्टे एट होम, सीक सम कॉम्पिटेंट एलाई टू मेक ए काउंटरवेट अगेंस्ट द एनिमी। जैसा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को डेवलप किया। चाइना की स्ट्रेटजीज को कंट्रोल करने के लिए इंडिया वियतनाम, थाईलैंड, लाओस इन कंट्री के साथ उसको उस तरफ से बाई रोड घेरने की प्लानिंग कर रहा है। हेंस ही सेज विंड इज फ्रेंड टू फॉरेस्ट फायर एंड कॉजेस इट टू फ्लेम द हायर। जब जंगल में आग लगती है उस पर अगर हवा चल पड़े तो वो उसकी दोस्त होती है और उस फॉरेस्ट फायर को वो बढ़ाती ही जाती है। सेम विंड ब्लोज ए कैंडल आउट, लेकिन अगर अकेली मोमबत्ती हो वो हवा उसको एक सेकंड में बुझा देगी। अकेली मोमबत्ती को बुझा देगी, जंगल में लगी हुई आग को बढ़ा देगी। इसलिए हमें अब अपने अलायंस लेने चाहिए ताकि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त बने और मैं उनके साथ दोस्ती करके अपने इस दुश्मन के ऊपर काबू पा सकूं। आपके सामने स्ट्रेटजीज रख दी। अब राजा क्या करें? राजा ने मीटिंग बुलाई थी कि भैया मेरे को कोई अच्छी सलाह दो। अब ये हो क्या रहा है? अच्छा, एक आध स्लाइड इसमें और रह गई। अलायंस इवन ऑफ फीबल फोक मेक्स फॉर डिफेंस, अलायंस कैन बी विद स्ट्रॉन्ग वंस आल्सो। जरूरी नहीं कि ये कमजोर के साथ करना है। नो, रिमेंबर दैट द 1971 वॉर विद पाकिस्तान, अमेरिका का 7वां बेड़ा इंडियन ओशन में आ गया और पाकिस्तान अमेरिका की सपोर्ट के ऊपर जो है एक बहुत जबरदस्त अटैक करने की प्लानिंग में था। एट दैट टाइम Andre Gromyko was the foreign minister of USSR and Mr. Swaran Singh was the foreign minister of India, and they both were deputed, and India USSR have a 20 years treaty in 1971 to counter the strong enemy which was USA. So alliance can be with anyone. We should have allies. इसकी भी मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है। To have alliance with other means capturing the market. बिजनेसमैन के लिए कैप्चरिंग द मार्केट, आइसोलेटिंग द अपोनेंट। होगी स्ट्रेटजी सारी? मिश्रा जी, कोई और कोई स्ट्रेटजी दिमाग में आ रही है? चलिए, होपफुली माय वॉइस इज ऑडिबल। Yes, it is. Please continue. ओके, अब ये जो है स्ट्रेटजीज जो सामने आई टू मैनेज द कन्फ्लिक्ट। अब राजा ने कहा कि अब मेरे को डिसीजन ही लेना है। अब मैं इनकी बातें सुनकर परेशान हो गया हूं। देन ही स्विच्ड ओवर टू द मोस्ट एल्डरली, कह लीजिए जिसको सबसे सियाना जो है उसका मंत्री था, उसकी तरफ वो हाथ जोकर जो है चरण वंदना करके खड़ा हो गया कि यू नो माय फादर, यू आर विद हिम, आपने इस कबीले को देखा है, आपसे सियाना इस वक्त कोई भी नहीं है। मेरे को अब आप ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। मैं संधि करूं, वॉर करूं, मूव अवे करूं, स्ट्रेंथन करूं, अलायंस करूं, मैं करूं तो क्या करूं? अब वो क्या कहता है उसको कि इन पांचों स्ट्रेटजीज को के ऊपर मारो कांटा, इनके कागज, इनकी सलाह को डालो कुएं में, और इस वक्त समय की डिमांड क्या है? ये स्ट्रेटजी, डुप्लिसिटी। राजा बोला क्या? डुप्लिसिटी। ही सेज डुप्लिसिटी इज द नीड ऑफ द आवर। नो, किंग इज स्लाइटली कंफ्यूज्ड। बोला क्या मतलब? He says the king, well served by spies who knows the functioning of his foes, who knows his retinue no less, is never plunged in deep distress. पंचतंत्रा में विष्णु शर्मा जी ने इस चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं। वो दूसरे राजा के 18 फंक्शनरीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक राजा को दूसरे राजा के कौन से 18 फंक्शनरीज के ऊपर निगाह रखनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि अपने जासूसों की मदद से
दुश्मन के फंक्शनरीज के ऊपर निगाह रख के हमें जो है इस वक्त एक डुप्लीसिटी की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। डुप्लीसिटी की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ये आप समरी देख लें। डुप्लीसिटी इज द shrewdest मूव टू बी adopted. It is the shrewdest move to be adopted. Disguising the opponent makes him confused. To know the weaknesses of the opponent makes one more strong. हम अपनी लाइफ में डुप्लीसिटी तो करते हैं, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। शायद कुछ लोग बाद में कहेंगे क्या यार कहानी सुनाई, हमें इस उम्र में ये कहानियां सुनाने आ गए। एनीहाउ, तो डुप्लीसिटी की जो स्ट्रेटजी वो बताता है, वो क्या क्या उसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है। इसे आप ऐसा करना, आप मेरे को उनका जो उल्लुओं का जो बाउंड्री है या टेरिटरी है, बाउंड्री के एकदम बाहर चोंच मारकर इंजर्ड करके वहां पर छोड़ देना। वो मेरे पास आएंगे, छोड़ के चले जाना, वो मेरे पास आएंगे और फिर वो एक राजा के साथ एक प्लानिंग करता है कि उसके बाद हम इस प्लान के हिसाब से काम करेंगे। आपको मैं समझा देता हूं कि हमने स्टेप बाय स्टेप विच एक्शंस वी हैव टू टेक। ऐसा ही होता है, वो आपस में एक प्लान बनाते हैं और जो सबसे जो उसका ओल्डेस्ट या वाइजेस्ट जो था, जिसने डुप्लीसिटी की सलाह दी थी, उसको कौओं की टेरिटरी के बाहर छोड़ देते हैं, चोंच मारकर, इंजर्ड करके। अब उल्लुओं का राजा जो है अपने वो सलाहकारों के साथ जब वो एक राउंड पर निकलता है तो देखता है कि ये कौआ वहां पर इंजर्ड पड़ा हुआ है। एंड दे रियलाइज दैट अरे ये तो इनका सबसे बड़ा इनका भीषम पितामह है, ये तो इनका बहुत सॉलिड है, वो पिलर है, ये इंजर्ड पड़ा हुआ है। अब उसको इंजर्ड पड़े हुए को वो पूछते हैं, भाई तुम कैसे हो यहां पर, यहां कैसे आ गए? वो कहता है कि मैंने 50 साल कितने साल हो गए इनके इस कबीले में रहते हुए, और अब जो है मैं इनको कह रहा था कि हमें आपकी उल्लू महाराज आपकी शरण में आ जाना चाहिए, हमें आपके साथ वी शुड स्टॉप द वॉर, वी शुड नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, राइदर वी शुड बो बिफोर यू बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू आर द श्रूडेस्ट, आप ही राजा महाराज हो, हम कुछ भी नहीं आपके सामने। और ये लोग मेरे से चिढ़ गए हैं और मेरे को मारने लगे थे, मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आपकी शरण में आया हूं, इसलिए हे उल्लू महाराज मैंने इनका जो है कौओं का साथ छोड़ दिया है, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे अपनी शरण में लो। उल्लुओं का राजा सोचने लग गया मैं क्या करूं। अब जिस तरह से कौओं के राजा के पास मिनिस्टर थे, उल्लुओं के राजा के पास भी मिनिस्टर थे, वो मैं एक एक दो स्लाइड में आपको बताऊंगा समय को देखते हुए। क्या करें? कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन बाय आउल्स। अब आप अपने मन में अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, जैसा मैंने शुरू में कहा था, उन सारी चीजों को मन में रखिएगा। कैसे रिजॉल्व करें ये? अब ये इधर आ गया है, ये कहता है कि मैं तो उनका साथ ही छोड़ दिया और ये क्या करें, मैं क्या करूं इसका। सो ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स, पहले मिनिस्टर को पूछता है हम इसको क्या करें। पहला मिनिस्टर उसको क्या एडवाइस करता है? एलिमिनेट हिम। ही सेज सोच क्या रहे हो, निकालो तलवार और गला उड़ा दो इसका। क्यों भाई, क्यों मार दें, वो तो जख्मी पड़ा हुआ है। राजा उससे पूछता है क्यों मार दूं मैं उसे? वो कहता है वन शुड एलिमिनेट द एनिमी विदाउट हेजिटेशन, अदरवाइज लेटर ही विल फाइट विद ऑगमेंटेड पावर बिकॉज ए लॉस्ट चांस ब्रिंग्स ए कर्स। एक कल को जो है अगर हमने इसको छोड़ दिया, ये कुछ और हो गया, इसलिए आप ख्याल रखना कि कोई भी दुश्मन आपके कब्जे में आए उसको जो है देर नहीं लगानी चाहिए, खड़क से उसका सिर उड़ा देना चाहिए, उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। इसलिए इसको भी अब आप इमीडिएटली मार दो, इसका कत्ल कर दो। ही हु विल नॉट व्हेन ही मे। अब इसको अपनी जिंदगी में लेकर आइएगा, हम अपनी लाइफ में जो है जो हम करना चाहते हैं। He who will not when he may, जब आप कर सकते थे आपने नहीं किया, when he will he shall have need, जब आप फिर करना चाहोगे तब आप कर नहीं पाओगे। जब आप कर सकते थे, मार सकते थे, अगर आपने नहीं मारा, बाद में उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मार देना चाहिए। Kill a weakling lest he grow hard to smite, later with augmented power he will fight।
कभी मैं सोचता हूँ कि जिसने ये इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया, कितनी मेहनत किया, कितनी बढ़िया प्रोज बनाकर जो है वो हमारे सामने रखा है कि वो एक वर्ड्सवर्थ और उसकी जॉन मिल्टन की पोएट्री की तरह लगती है। दैट श्रीव्ड मैन अनमास्क ए फो हु सीम्स ए फ्रेंड। जो कहते हैं सियाने होते हैं ना, श्रीव्ड होते हैं, वो जल्दी समझ जाते हैं कि साला ऊपर से ये लल्लो चप्पो कर रहा है पर अंदर से मेरे खिलाफ है, ये दिखाई दे रहा है कि मैं दोस्त हूं पर अंदर से दुश्मन है, इसकी स्पीच बड़ी अच्छी है, इसके एक्शन जो है वो ठीक नहीं है, इसको मार देना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है? वो बोलता यहाँ ये क्या बोल रहा है ये? अरे वो इंजर्ड पड़ा हुआ है, वो आपकी शरण में आया हुआ है, आप कह रहे इसको मार दो, वो हाथ जोड़कर आपके सामने कह रिक्वेस्ट कर रहा है। हमें ऐसे बंदे को एक मेहमान की तरह देखना चाहिए, एक मेहमान की तरह ट्रीट करना चाहिए। उल्लुओं का राजा बोलता है यार ये क्या बात बनी, कहां मार देना, कहां मेहमान। देन ही आस्क्स भाई क्यों? एंड द मिनिस्टर सेज whoever does not give his best to cheer the late arriving guest will see his merit borne away and for the others sins will pay. अरे वो एक आया है, आपकी शरण में आया हुआ है, उसके लिए अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो आपका ये जो इतना मेरिट है, इतना गुण है, इतना वो आपके जो अच्छाई है वो तो वो खत्म हो जाएगी। वो abundant thoughts of hate deriving from my captive state on virtues set your heart। अपने दिल में नेकी लेकर आओ, दरियादिली लेकर आओ। पे दिस मैन सच ऑनर एज यू मे। इसको जो आप इज्जत दे सकते हैं वो दो, क्योंकि ये हमारा धर्म है कि इस इंजर्ड बंदे को उठाकर ले जाना, इसके जख्मों को ठीक करना और उसको मेहमान की तरह ट्रीट करना। और अगर आपके घोंसले में एक मेहमान के लिए प्रोविजन ही नहीं है, why occupy today tomorrow a nest that harbors not but sorrow। क्या है, किस लिए ये आपका राजपाट? लड़ाई के लिए, दुख के लिए, घृणा के लिए, नफरत के लिए? अरे उसको मेहमान की तरह ट्रीट करो। अब ये मारने की बात कर रहा है, वो मेहमान की तरह बात कर रहा है, तो उल्लुओं का राजा तीसरे से पूछता है भाई क्या करूं? तीसरा कहता है ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई हमारे सामने, हमें इसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए, मारना नहीं है। मेहमान को ये नहीं कि इसको मेहमान बनाकर रखेंगे, खिला पिलाकर जो है वो अपना चला गया। इससे एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। वी शुड मेक हिम फ्रेंड। एडवांटेज बी एंटीसिपेटेड फ्रॉम ए बेनिफैक्टर, थीफ दाउ हे में भी। चाहे वो चोर ही क्यों ना हो, उससे भी हमें फायदा उठाना है। चाहे हमारा दुश्मन है, चाहे ये क्रुप्ट है, जनरेशन से हमारे साथ दोस्ती चल रही है, आज हमारे पास आया, हम इससे सीक्रेट पता करेंगे, सारे इनपुट्स लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, और हैविंग बीन maltreated by them he will labor for our success। वो उनसे दुखी इतना हो गया है कि अब वही बंदा हमारी कामयाबी के लिए, हमारी विजय के लिए हमारा साथ देगा। hence he should not be killed, hence he should not be killed। अब देखिए यहां पर भी जिसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास कितना आ गया, मारने से लेकर, गेस्ट से लेकर, फ्रेंड बनाने से लेकर। और चौथा क्या बोलता है, यार क्यों पचड़ों में पड़े हुए हैं आप लोग, अरे उसको दफा करो, उसको बोलो जा, तू जहां से आया वहां जा, तू कौन है? तू है कौवा, हम है उल्लू, तुम्हारी है हमारे साथ दुश्मनी आज से दुश्मनी पुरानी है। तो तुम जहां इंजर्ड हो, तुम्हारे दोस्तों ने तुमको इंजर्ड किया, तुम उन्हीं के पास जाओ, हमने उसको अपने पास रखना ही नहीं। ये चार स्ट्रेटजी जो है उल्लुओं के राजा के सामने आ जाती है। अब मैं कहानी को समाप्ति की तरफ को धीरे धीरे ले जा रहा हूं। वहां पर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की 6 स्ट्रेटजीज आई, जिसमें से डुप्लिसिटी को उन्होंने श्रेवियस्ट मेथड अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके एक प्लान की, एक चाल खेली, और इंजर्ड होकर वो सियाना कौवा वहां आकर पड़ गया। इधर इन्होंने 4 स्ट्रेटजीज देखी कि इस कन्फ्लिक्ट को कैसे बचा जाए, कन्फ्लिक्ट को उसको मार दें या उसको दोस्त बना लें या अलायंस कर लें या उसको छोड़ ही दें। अब हुआ क्या, फाइनली हुआ क्या, कहानी का अंत मैं करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भी स्ट्रेटजीज तो ठीक है, पर हुआ क्या कहानी में? हुआ ये कि ये जो है कौवा प्लानिंग करके आया था
कि मेरे को चोंच मारकर जख्मी कर देना एंड आई विल विन देयर कॉन्फिडेंस। तो उल्लुओं के राजा ने क्या किया कि उसको जो है वो उठाकर अंदर अपने किले के अंदर ले आए, किले के अंदर ले आए और इसने उनसे रिक्वेस्ट की, जनाब मैं तो अब बूढ़ा भी हो चुका हूं, मेरे से कुछ होगा भी नहीं, मेरे को इधर दरवाजे पर गेट पर पड़ा रहना दीजिए। इसके ऊपर भी उल्लू के राजा के मिनिस्टर ने उसको सलाह दी कि देखो आप पहली तो ये गलती कर रहे हो, उसको ले आए, एंड सेकेंडली इवन इफ यू हैव ब्रॉट हिम ही शुड बी पुट इन प्रिजन, he should not be here. Under no circumstances he should be allowed to remain near the entrance. But somehow the king ignored their advice. बोला ठीक है, बुड्ढा है, इधर पड़ा रहेगा गेट के ऊपर। That was his planning. वो he wanted to remain in the gate so that he could know कि यहाँ पर कितने उल्लू कब आते हैं, कब जाते हैं, किस तरह के उल्लू जो है वो बाहर गए हुए हैं, किस तरह के उल्लू अंदर हैं, फिट कितने हैं, स्ट्रॉन्ग कितने हैं, ये है वो है, सारी आने जाने की इनपुट्स, इंफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, मूवमेंट सारी वो लेता था। एंड ही हैज ऑलरेडी प्लान्ड दैट एन एप्रोप्रिएट टाइम आई विल गिव यू सिग्नल। तो एक दिन जो है जो उल्लू खूब शिकार शकूर खेल कर अपने आ रहे हैं, शाम को बोन फायर कर रहे हैं, अपना विस्की पी रहे हैं बैठे हुए, तो उस वक्त जो है वो क्या करता है, अपनी चोंच में एक जलती हुई तीली जो है वो लेकर उड़ता है। वो जलती हुई तीली इज ए सिग्नल टू द अदर क्रोस, और उसके सिग्नल को देकर सारे के सारे क्रोस जो है वो अपनी चोंच में जलती हुई तीलियां लेकर आ रहे हैं, और जो मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे उल्लू जो है, जो मदहोश पड़े हैं, उनके ऊपर आग बरसा देते हैं और उल्लू जो है वो जलकर खाक हो जाते और कौओं की विजय हो जाती है। ये है उस कहानी का अंत। और ये सारी जो है प्रेजेंटेशन जिसमें मैंने छोटी छोटी समरीज बनाई थी, इससे द व्हाट कंक्लूजन आई हैव ड्रॉन जस्ट 2 to 3 minutes more, that this story is a masterpiece on strategy formulation and conflict management. This story indicates one should at first assess one's rival in view of his enemy's strength, one's own strength level. One should think, plan and take the next step to counter the enemy. लद्दाख में जो है अगर चाइना घुसा है, वो टीवी के ऊपर जो है बहस हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हमारी फौज बड़ी तगड़ी है, हमारे पास रफाल आ गया, हमें अटैक कर देना चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता। यू हैव टू असेस कि मेरा राइवल है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा अपना स्ट्रेंथ लेवल क्या है, हाउ लॉन्ग आई कैन अफोर्ड द वॉर, वेदर फॉर 3 days, वेदर फॉर 5-7 days, वेदर फॉर 10 days, what will be the economic condition of my country, and I should plan and take the next step as per the various strategy formulations. And I have finally I have drawn the conclusion that asset management, it's built up, is the foremost thing. आप कोई भी डिसीजन राइवल के अगेंस्ट लेते हो, पहले अपने असेट मैनेजमेंट को ऊपर पिक्चर रखना। वन शुड नॉट बी अननेसेसरली इमोशनल, रैश एंड जस्ट immediately taking that at the spur of the moment any decision which might be harmful to us only. The advisable thing is to increase the resources, build up the capital, ताकि आपके पास मैचिंग फोर्स हो टू टेक ऑन द अदर पार्टी। अगर नहीं होगा तो फिर नुकसान आपका होगा। एंड फाइनली it is also a treatise on the shrewdness, intelligence and tactful handling of the opponent. Opponents को किस तरह से हैंडल करना है, I consider this story as a masterpiece on strategy formulation and shrewdness and intelligence. Thank you very much. Colonel sir. Yeah, General sir, thank you very much. The story was, very, very put very well across at present situation. Also, it is very apt with whatever is going on. So, any question and answers? We have very limited time. Anyone has any questions and answers? You can unmute yourself and. सूरी साहब ने बहुत अच्छे से कन्फ्लिक्ट को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है उसको समरी में 2-3 मिनट में बताया। तो हम चाहेंगे कि सूरी साहब आके हमारे को कन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करना है
उसको और डिटेल में बताएं, ताकि हमको उनकी ये कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल का पूरा से पूरा लाभ मिल सके। मैं रिप्लाई देना चाहूंगा। एक्चुअली लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इट्स अबाउट 2 आवर प्लस, ऑलमोस्ट 2.5 आवर। नॉर्मली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या और जगह जब ये करता हूं तो मैं उनको कह देता हूं कि भाई 2.5 से 3 घंटे के लिए आप तैयार हो जाइए। अब क्योंकि 45 मिनट्स में मेरे को करना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट it requires another 1 hour plus. Let's be very frank, it requires another 1 hour plus. We can have another meeting where we can do Yes, it. yes, we So will we have. can But- discuss more about the conflict management and less about the conflict, because conflict को आपने बहुत अच्छे से explain किया। हमारे fact- राकेश जी ने भी पूरा in fact- उस पे ही किया है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे ही किया है अभी तो। जी, एक्चुअली कोई ना ये In एक्चुअली fact, मैं it was हाफ डे का सेशन करता होता हूँ। Yeah. हाफ डे का सेशन होता है मेरा अबाउट 3.5 आवर्स। अब इसलिए उसको मेरे को समेटना एक बहुत प्रॉब्लम था कि मैं 45 मिनट्स में क्या बताऊं क्या ना बताऊं। तो Yes, चलिए कोई I बात नहीं, fully- पार्ट सर पार्ट बी हम समझ सकते हैं। Anyway- And you, whenever you are having the detailed session of 2 hours or full session, तो आप थोड़ा सा हमारे को इंफॉर्मेशन देंगे तो we would like to attend that. हाँ, Umesh bhai, we will if we may have another session or we can attend. He keeps on having webinar on this topic, so I will let you know. So you can In attend. fact, I fully agree with Yeah. General Shori. Today's conflict management was only limited to the war situation. In fact, I was looking forward to conflict management, which is normally in our interpersonal relations on day-to-day basis. Conflict management in the corporate house, in our family, in our relationships, in our neighborhoods. We are full of conflict all the around. topic is very How- vast. विवेक भाई पिक्चर अभी बाकी है। How to Picture handle अभी the बाकी है। real scenario. Any Okay. Bhai, Colonel Sahab, I think back to you. Yeah. We don't have time for okay, any more. thank you very much. Thank you, so nice of you. In fact, we have already overshooted the time. And before going on further agenda, I would like to welcome once again Vivek Kaul, Rajiv Khoshla. We have two other, we are not able to know, Galaxy J7 and C9 AAE23. We are not aware because names has not come. Anyway, we welcome them, warm welcome to all of them for joining. Not taking much time, this is the time now for, going for formal vote of thanks. So I am going to invite President-elect Rotarian Rakesh Relan. So over to Rakesh ji. Thank you, Colonel Saab. General Shori, it was indeed a pleasure to listen to you on conflict management. We have conflicts every time in every situation. In fact, we always find ourselves on crossroads. Now, which is the best road to choose, and which will be the right ride that we have to decide in every phase of our life, whether to go aggressively, whether to cool down, when you are in not having right time, whether to lie low or then to take the things or take the bull by horn. All these choices we come across, and at that point of time, what are your surroundings, what are who are your friends and foes, everything decides. And you have explained this so beautifully that I feel if this session, as you rightly said, that requires to be of more than 2 hours or 3 hours, that yes, this requires a lot of time, and it will be indeed a privilege to listen to you as and when we find this opportunity, and we'll like to join you. So conflicts are always there, and I hope this gives us a good insight in certain circumstances how to actually solve your conflicts and choose a right path. You have given an excellent example. China, yes, everybody is sure that we should attack or we should not attack. This confusion is there. And as a layman who is not aware about the strategies, he will always go and kill them. So that's a general tendency. And this clears a lot of doubts. And thank you very much for sparing your time. And thanks to Colonel Mishra for arranging this beautiful session. I'm really
glad to be part of this session. Thanks a lot from Rotary Club of Pune Riverside. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. I'll just say one thing that दोस्तों picture अभी बाकी है. बिल्कुल. Thank you. And Rakesh bhai, thank you very much for giving beautiful formal vote of thanks. General Shourie, this thought of the week by Rotary Club Pune Riverside is a tradition. So for that, I will like to invite Rotarian Prerna Gaikwad. So over to Prerna. Good morning again. Something on the lines of what we've just heard today's session. The thought of the week is, no matter how thin you slice it, there will always be two sides. Very Thank well you. said. Very well Good said. one. Thank you. Similarly, this joke of the week is also a tradition of Rotary Club Pune Riverside. Every meeting we have. So for that, I would like to request Rotarian Sandeep Baisji. Over to Sandeep ji. Thank you, Colonel Sahab, and good morning, everybody. Colonel Amil has put across this thought, and the story is probably one of the best I have ever come across in my life. So I'm really touched with the way you expressed it and the way you presented it today. अब बात हो रही थी कि स्टोरी में एक मोरल होता है, तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई उसी पे, छोटी सी, कि एक बेटा था एक बाप का, वो उसको दारू पीने की आदत पड़ गई. तो बाप बहुत कंसर्न हो गया कि दारू पीता है, तो कोई इसको किसी तरह से कुछ मैसेज दिया जाए कि ये दारू पीना छोड़. तो उसको एक वाइज मैन ने सजेशन दिया, एक काम करो, ये एक एक्सपेरिमेंट करो उसके सामने, वो शायद दारू पीना छोड़ देगा. तो बोले, क्या एक्सपेरिमेंट है? तो उसने बताया ये करना. तो उसने बेटे को बुलाया बाप ने और बोला कि देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ. तो उसने 2 बॉटल निकाले, एक में पानी भरा, एक में दारू भरी, और एक डब्बी में से 2 अर्थ बम्स निकाले, एक पानी वाले में डाला, एक दारू वाले में डाला. तो जो दारू वाला था वो बेचारा तड़प के मर गया. तो बाप ने पूछा बेटे को, क्या समझे इससे? बोले, डैड मैसेज बहुत सिंपल था कि अगर आप दारू पियोगे तो पेट में कीड़े तो नहीं होंगे. Thank you, Sandeep bhai. Thank you. Before I go for declaring the meeting adjourned, I would like to share with you all that next week we will not be having a weekly meeting, as I already shared with you. There will be BOD, but next week we will be having Sri Anand Kumar Takwale, IPS Regional Passport Officer Pune, on a very interesting topic: socio-economic communal harmony in our society. So please block date and time for that, and I will request all the BOD members to join BOD meeting on coming Wednesday. Time is the same. So it's already time. We have already overshooted. General, thank you very much for your stunning talk, and it has been liked by everyone. And you have seen the request for another session. So let's see how it happens. Yeah. So thank you very much, and thank you once again all the guest participants, Vivek and Khosla-ji and others. So with your permission, now I would like to end the meeting. Can I have your permission, please? Yes, sir. Thank you, Deepak bhai. It's always Thank you. Thank you, General. Thank you. Thank you.